Hello, Anushka. Hello, sir. So, like, what is your self-evaluation of the mock? How did it go? So I think I will have to read more on cultural parts. I was not that convincing in that parts, I think. And another thing is, if I'm not sure actually, but I think the nodding happens more than required sometimes. And I will also have to read about the social issues and especially related to women and social issues. I think so, but I think for few of the parts compared to previous mocks, this was I think better. Yeah, yeah, yeah. I think we all felt that it was a very, very good mock, right? So, we don't think you have to read a lot. You are actually pretty much interview ready. You can give the interview, and even today you can score very good marks in real interview in UPSC, right? So just keep going, keep doing whatever you have been doing till now, right? All is good. Like your communication skill is very good. The most important quality is that you are very calm and composed. Like whatever things you have learned in your Bharatanatyam dance, it reflects in your personality. You know, you come across as a very like honest, soft spoken, and a graceful person. So that is all very good, right? Your views are also mostly very mature, right? Your content part is also decent, right? And we checked you on a diverse issue, right? From environment, history, from on the spot speaking, arguing, all kinds of things. Like we checked. So there is not much to work on, right? Like there was one question from Rishabh sir about this Jata Shankar mythology, right? So sometimes UPC members are interested in all these topics. So read about it if it is there, right? All these things. So उसको थोड़ा सा cover कर Right. लो. बाकी like there is not much to add. एक एक दो चीज जो etiquettes में है कि whenever a Mm-hmm. member is asking you something, आप all right sir allowed बोलती हो. That is good. ना it looks very polite, no issues. बट उसके थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हो. हर क्वेश्चन के बाद सुनने के बाद आपको अलाइट ऑल राइट नहीं बोलना है. मे बी इट कुड बी अ स्ट्रैटेजी कि आप 2-3 सेकंड लेना चाह रहे हो ऑल राइट बोल के, सो यू गेट अ कंपोजर. तो उसको थोड़ा मिनिमाइज कर Right. सकते हो. डेट इज नॉट दैट बिग एन इशू, राइट? बाकी कभी कभी ना जो कर्टसी वाले स्टेटमेंट होते हैं ना, उसको थोड़ा और पोलाइट कर सकते हो, राइट? ऐसे योर पर्सनैलिटी इज लाइक वेरी वेरी लाइकेबल पर्सनैलिटी एंड पोलाइट. बट जैसे कि आपने क्लासिकल डांस वाले सवाल पे आपने बोला कि आई विल टेक अ मोमेंट, राइट? उसको रिफ्रेश करके सर मे आई टेक अ मोमेंट, तो और पोलाइटनेस आ Right. जाती है, नथिंग लाइक मोर. सिमिलरली जैसे कि आई एम सॉरी बोलते हो ना, तो आई डू नॉट नो ये बोलने की जगह यू कुड से कि सर आई एम सॉरी सर, आई एम लाइक अभी नहीं, आई डोंट नो, आई विल रीड इनटू इट. तो आई एम सॉरी को स्टार्ट करो, आई डू नॉट नो बाद में बोल दो, राइट? तो और थोड़ा सा Right. पोलाइट आ जाता है, राइट? तो Correct. ये ही दो तीन चीजें हैं. देखो मेन सजेशन जो फ्रॉम फर्स्ट इंप्रेशन जो आया था कि यू शुड Hmm. नॉट डू एनी ब्लंडर. सिंपल, अगर आप जैसे हो वैसे ही जाके इंटरव्यू देके आओगे इन योर नेचुरल वे, आपका बहुत अच्छा Hmm. स्कोर आने वाला है, राइट? एंड आई Hmm. लाइक प्रिटी श्योर आपका मेंस भी अच्छा हुआ होगा, आई थिंक सिविल इंजीनियरिंग वगैरह. हाउ डिड इट गो? सिविल इंजीनियरिंग का एक पेपर थोड़ा टफ था बट बाकी सारे पेपर वर गुड. Right, right, right. So that is very good, right? You have a very, very real and very, very good chance to get a very high rank this year, right? So बस कुछ ब्लंडर नहीं करना. अब जैसे कि आपने पूरे मॉक में कहीं ब्लंडर नहीं किया, जाते जाते आपने एक वर्ड बोल गई रिजर्वेशन पे, ठीक है? तो वो बहुत स्मूथ है, पूरा इतना स्मूथ चल रहा है, तो कुछ भी ऐसा प्लॉट करो मत जो आपके अगेंस्ट चले जाए, राइट? कोई सोच रहा है कि Right. इसको तो 200 नंबर देना है, फिर एकदम से और आपने इच्छा जता दी कि और सवाल पूछ लें. बट 40 मिनट्स हो गए थे तो हमने ग्रिल नहीं किया उस पर. बट गुड, आपने जो बोला उसमें कुछ भी गलत नहीं है. बट स्टिल वी डोंट नीड टू प्लॉट एनीथिंग कि क्यों, मतलब स्मूथ जितना चल सकते चलने दो ना. ऐसे वर्ड बोलना ही नहीं है, Right. ठीक है? कि Correct. हो पाए, अगर वो बोल रहे हैं खुद ही तो ठीक है. अगर अब जैसे कि काऊ वाला था, इट वाज इट कुड बी अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, राइट? अगर मैं टाइगर का रेफरेंस नहीं दूं, सिर्फ टाइगर तो Hmm. हेल्प करने के लिए कि आप आंसर दो, इसलिए आई आई ऑलवेज पुट टाइगर. काऊ वाले इश्यूज में आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बट ऐसे कुछ भी कंट्रोवर्शियल ब्लंडर नहीं करना है, ठीक है? बाकी सब Hmm. बहुत अच्छा है, ठीक है? कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एंड लाइक बहुत ज्यादा है चांस है कि यू विल एंड अप अ वेरी गुड रैंक दिस ईयर इटसेल्फ, राइट? तो और दूसरा एक लास्ट जो चीज है कि सिर्फ आप अभी इंटरव्यू रेडी लग रहे हो एंड इंटरव्यू इज 1 मंथ अवे, तो आपको आपका जो जो भी है टेम्पो मेंटेन रखना है ना. यू लाइक पीक उस समय भी रहे. प्रीलिम्स अगर दे रहे हो तो बीच में प्रीलिम्स डोंट इंटरफेयर मच विद द इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसको मैनेज करके रखो. बाकी इट्स ऑल वेरी गुड, राइट? यू आर वेरी वेरी लाइकेबल पर्सनैलिटी, राइट? सो आई थिंक दिस इज द जनरल फीडबैक जो हम सबने डिस्कस की थी. अगर कुछ और ऐड करने को है एक्स्ट्रा तो सर यू कैन ऑल्सो ऐड. Yeah, I think उतना भी नॉडिंग नहीं है.
बट यस इट कैन बी रिड्यूस्ड, अगर आपको ऐसा लगता है आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह में देख लेना। सेकेंड थिंग मैंने इसकी वही है, हाँ, तो उसको थोड़ा सा ट्यून किया सकता है, आप थोड़ा सा गंभीर पर्सनालिटी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है नॉडिंग, एंड द नॉडिंग इज है, आपके आंसर्स बहुत अच्छे हैं। आई नो दैट व्हेन इवन व्हेन यू से कि कैन आई टेक अ मोमेंट, यू डोंट थिंक, वो चेहरे पे नजर आता है कि यू जस्ट टेकिंग अ पॉज, बट वो दिमाग चल नहीं रहा। तो दैट इज ओके, वो सीखता है आदमी धीरे धीरे, प्रेशर सिचुएशंस में समटाइम्स माइंड्स डोंट वर्क, और योर आंसर्स आर ओके। थोड़ा सा एक आप कम कर सकते हैं, ऐसी अपने अगर मान लीजिए 3-4 मॉक दे दिया तो यू वुड नो कि दीज आर दी क्वेश्चंस दैट वुड बी एक्सपेक्टेड। लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर टाइम वगैरह परमिट करता, कि व्हाट इज डांस, सो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन? राइट ठीक है, हाँ सो हाँ यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन। नो, डांस का बहुत अच्छा इसका आंसर दिया जा सकता है, दैट कैन मेक योर और ब्रेक योर इंटरव्यू। Like dance is offered as an, a dancer offers his dance to God as an offering. yes, तो उस तरीके का अगर आप आंसर कुछ देंगे ना, तो एक बहुत ही डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखेगा आपके परस्यूट्स में। ठीक है, हम्म, और नॉर्मली चूंकि आपके उसमें भरतनाट्यम है, आपका ये है, तो दिस विल बी देयर। सो व्हेन यू एक्सपेक्ट कि दिस एरिया से क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस का एक ब्रॉड स्केलेटल फ्रेमवर्क आप कहीं पर लिख लीजिए, सो दैट वहां पे एक इम्प्रॉम्प्टू आंसर जनरेट करने में, और इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज जैसा फील ना हो, उसको आगे ले आने में इट विल हेल्प यू। So I think this is the thing. You're very composed, calm, very polite. ठीक है. Um, just be yourself and replicate this performance. And since you're giving it 1 month in advance, थोड़ा सा minute improvements will fine tune your performance above 180, 190. So that is all. थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक दो चीजें मुझे एक्चुअली पूछना था, नॉट अबाउट, एक्चुअली पहले आप बोल लो फिर मैं एंड में पूछती हूँ। ओके, Uh, ऋषभ सर कुछ बोलना ऐड करना है या यू कैन आस्क? नहीं, काफ़ी बढ़िया था आपका इंटरव्यू, है ना? यू आर ऑलरेडी इंटरव्यू रेडी, और बाकी सर लोगों ने जैसा फीडबैक दिया उसी पे काम कर लेना है, और बाकी ऐसे काफ़ी अच्छा था आपका। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आप You पूछो। यस सर, एक्चुअली ना जैसे मेरे एक मॉक में थोड़ा सा पूछा था कि विमेन को रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उस पे मैंने आंसर ऐसे किया था कि देना इज गुड, जैसे एजुकेशन में तो सबको देना चाहिए, बट जॉब में मे बी वो कुड कीप सम, जैसे क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर होता है या ऐसे कुछ किया जा सकता है इन सम स्टेट्स, स्पेशली सदर्न स्टेट्स आई थिंक, क्योंकि जहाँ ऑलरेडी एम्पावर्ड है वुमेन कुछ हद तक, तो उसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल बाकी लोगों को लग रहा था कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो इज इट ओके टू से दैट, और should I not put any conditions and just say yes, ऐसे वाले क्वेश्चन में? नहीं नहीं, इसका कोई ऐसा आंसर नहीं है। यू हैव टू गिव एन आंसर डिपेंडिंग अपॉन जो कॉन्टेक्स्ट सेट किया गया है। I will give you some examples that will help you to arrive at a good answer. Is see, in 1950s ना, 1950 में ही वुमेन को रिजर्वेशन वगैरह देने की बात हो रही थी, पार्लियामेंट वगैरह में भी, एंड वुमेन ग्रुप्स अपोज्ड एट दैट टाइम दैट रिजर्वेशन शुड नॉट बी गिवन। और अभी देयर इज अ डिमांड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, लाइक almost 2 decades की 33% आप रिजर्वेशन दे दिए 2-3 committees. So when context changes, when things changes, perspective changes, ideas and opinions do change. So कुछ ऐसा नहीं है, no answer is wrong, but that answer has to be presented in a way that it ticks all the boxes. So देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आप एक बार बिहार की केस स्टडी देख लीजिए। ठीक है, और थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, क्योंकि आप पुलिस में अगर आप इतने वुमेन को डालेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा, उसके चैलेंजेस भी आएंगे। सो मेक अ केस फॉर इट, स्टडी इट, एंड देन यू विल डेफिनेटली अराइव एट अ वेरी गुड आंसर। Alright, sir. Thank you. ओके, एंड ऑल्सो आई जस्ट वांट टू ऐड कि एक चीज और है जो लाइक मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखी थी कि यू डोंट नीड टू टेक जो भी आप मॉक में कर रहे हो उसका कुछ ज्यादा हैंगओवर अपने मेन इंटरव्यू में लेके नहीं जाना है। ठीक है, जो मॉक देने का अपना एम ये होता है कि जो व्हाट यू कुड डू एज अ सजेशन इज एक कॉपी बना लो एक पेज पे। सपोज आपने 4 मॉक दिए, फर्स्ट मॉक में आज जैसे कि वी टोल्ड यू अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव विच आर गुड अबाउट योर पर्सनैलिटी, उसको एक पेज पे लिखो। अब आपका खुद का ऑनेस्ट आना चाहिए
कि इन्होंने बोला, ये रिव्यू दिया है, इज इट गुड, आपकी ओपिनियन में ठीक है कि नहीं, आपको लग रहा है ना दीज आर दी ट्रेड्स इन माई पर्सनैलिटी, उसको लिख के रखो। हमने कुछ 2-3 इंप्रूवमेंट बताए, उसको नेगेटिव्स में लिख के रखो कि इसको नेक्स्ट टाइम बेटर करना है, ठीक है। तो आप हर मॉक में ऐसे करोगे, अब जब नेक्स्ट मॉक में जाओगे, अगर आपको लग रहा है कि नॉडिंग थोड़ी कम करना है, तो नेक्स्ट टाइम योर नॉडिंग शुड बी कम। नेक्स्ट टाइम एक फीडबैक दिया है कि आपका जो जो कॉर्टसी वाले स्टेटमेंट होते हैं ना कि सर आई एम सॉरी, मे आई टेक अ मोमेंट, ये बेटर होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो बस ये लेके जाना है, ऐसे कंटेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करना। लाइक लास्ट टाइम रिजर्वेशन पे उन्होंने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, कुछ बोल दिया, तो वो चीज, दैट वर्ड शुड नॉट प्ले इन योर माइंड कि इस बार आपने चेंजेस क्या आए इंटर जनरेशन में, तो रिजर्वेशन आपने दे दिया, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई सेड कि हैंगओवर आपने दिमाग नहीं प्ले करना चाहिए। कभी कभी कोचिंग वाले भी गलत रिव्यू दे सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना, कभी कभी बहुत हेल्पफुल भी होता है, तो आपको खुद का भी कॉल लेना है, राइट, इट्स ऑल राइट। तो हैंगओवर नहीं लेके जाना कि ये वो ऐसे करके, सिंपल। बाकी इट्स फाइन, आपने जो आंसर दिया था, जो परितोष सर ने आपको कंटेक्ट भी बताया, उस पर थोड़ा और सर्च कर लो, और जो आपने बोला था उसमें मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। आपने कुछ कंडीशन ऐसे कुछ वो तो रखी नहीं कंट्रोवर्शियल, अल्टीमेटली आप क्रीमी नॉन क्रीमी या उस तरह का बोल रहे थे, तो वो गवर्नमेंट भी यूज करती है ना, और उसकी भी बात चल रही है कि जो दूसरे कैटेगरीज है उनमें भी वो लाने की, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है ना, नथिंग दैट कंट्रोवर्शियल उस पे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, राइट। इफ आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो वी कैन एंड द मॉक हियर। Yes, sir. Okay, all ओके right. ओके Thank you so much. ओके, Thank you so much. ऑल